हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द लॉ क्लासेस बाय शिवानी। सो स्टूडेंट, आज के वीडियो में आई विल बी डिस्कसिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रिलेटेड टू द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, that is NDPS Act. Keeping in mind the current scenario, we need to know what are the important judgments. So उसी से रिलेटेड मैंने ये वीडियो बनाया है यहाँ पे। आई होप आपको पसंद आएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा, सो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। Being a law student, you all should be aware of all these judgments. So without further ado, let's get started. So your first case is Union of India through Narcotics Control Bureau Lucknow versus Mohammad Nawaz Khan. 2021 का ही जजमेंट है, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बेंच ऑफ जस्टिस D.Y. Chandrachud and B.V. Nagararatna held that the test which the Supreme Court and the High Courts are required to apply while granting the bail is whether, यहाँ पे कौन सा टेस्ट अप्लाई किया जाता है इस एक्ट के अंदर जब बेल ग्रांट करने पड़ती है। सो व्हाट आर द थिंग्स विच द कोर्ट लुक्स इनटू। तो पहली चीज़ ये, whether there are reasonable grounds to believe that the accused has not committed an offence, and secondly whether he is likely to commit an offence while on the bail. The bench observed that the stringent parameters for the grant of bail under NDPS Act have been prescribed in order to curb the menace of drug trafficking in the country. The bench further observed that the Section 37 of the NDPS Act, the limitation in the grant of bail for the offences punishable under Section 19, 24 or 27A, and also for the offences involving a commercial quantity are, the prosecutor must be given an opportunity to oppose the application for the bail, and there must exist the reasonable grounds to believe that the person is not guilty of such an offence and he is not likely to commit any offence while on bail. So I guess this case is clear. यहाँ पे टेस्ट लेट डाउन किया था, what are the things which is required to grant the bail to the person accused under this NDPS Act. ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें थी, हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट केस, गुरदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 2021 का ही है। बेंच ऑफ जस्टिस D.Y. Chandrachud and M.R. Shah held that while awarding the sentence or punishment in case of NDPS Act, the interest of the society as a whole is required to be taken into consideration, and while striking a balance between the mitigating and aggravating substances, public interest impact on the society as a whole, while observe that in a murder case, the accused commits the murder of one or two persons, while those persons who are dealing in narcotics drugs are instruments in causing death or in inflicting the death blow to a. Further, the bench observed that the organized activities of the underworld and the clandestine smuggling of the narcotic drugs and the psychotropic substances into this country and illegal trafficking in such drugs and substances shall lead to drug addiction among a sizable section of the public, particularly the adolescents and the students of both sexes, and the menace has assumed serious and alarming proportions in the recent year. So ये काफ़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है इस केस में। तो यहाँ पे ये जो केस के ऑब्जर्वेशन है, यू कैन यूज़ इन योर एस्से ऑल्सो इन केस अगर एस्से आता है इस तरीके का कि अगर ड्रग्स के ऊपर कोई एस्से आया तो आप यहाँ पे ये चीज़ लिख सकते हैं कि जब भी आपका यहाँ पे सेंटेंस अवॉर्ड किया जाता है तो देखिए यहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है, एक बैलेंस क्रिएट होना चाहिए कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच लीड टू सच थिंग, ठीक है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी अवॉइड. So basically the consumption of narcotic drugs and psychotropic substances is very deadly because it is a blow against the whole society. यंगस्टर्स यहाँ कितने ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं. सो एज एन होल इस केस में यही ऑब्जर्व किया गया है दैट इट इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन एंड एवरीथिंग शुड बी कीप इन माइंड वाइल अवॉर्डिंग द सेंटेंस इन दिस एक्ट, NDPS एक्ट. सो इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन. एक बैलेंस क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है. अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट केस की तरफ. सो दिस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इसका रेफरेंस R.N. खान केस में भी हुआ है. तूफान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. पहली बात ये है दैट इट हैड ओवररूल टू जजमेंट, राजकुमार करवल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड कन्हैया लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. एक्चुअली क्या होता है कि जुडिशरी के एग्ज़ाम में आपके इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इस केस ने किसको ओवररूल किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये हाईलाइट की है. ऊपर से करंट है भी काफ़ी ज़्यादा, ये चर्चा में भी है, दैन यू शुड नो अबाउट दिस. सो व्हाट वाज हेल्ड इन केस, यहाँ पे ये बताया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं ना इस केस के अंदर, मतलब कि इस एक्ट के अंदर, दे आर वेरी मच पुलिस ऑफिसर विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट. अब 25 एविडेंस एक्ट के अंदर दे आर कवर्ड. इसका मतलब ये है कि एनी कन्फेशनल स्टेटमेंट मेड टू दीज ऑफिसर्स वुड बी बार्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25.
and cannot be taken into account in order to convict an accused under the NDPS Act. उसके बाद एक बात और बताई गई है that it was also held that the statement recorded under section 67 of the NDPS Act, it cannot be taken into account as a confessional statement in the trial of an offence under the NDPS Act. I guess अब तो आपको समझ में आ गया कि ये इतना important. So it was a direct infringement of Article 14, 20 Clause 3 और 21. यहाँ से आपको एक चीज़ और समझनी चाहिए कि आपके स्टेटमेंट वाइज जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एनडीपीएस एक्ट आ गया, सो यू हैव टू टेल कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि 53, 25 ऑफ द एविडेंस एक्ट और 42 एंड दीज 3 आर्टिकल्स। तो आपको जो है ये ध्यान रखना है, ये जो आर्टिकल्स हैं, जो सेक्शंस हैं, कितने ज़्यादा हैं। सो आफ्टर रीडिंग दिस केस, एक पॉइंट आपके दिमाग में अब बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि whatever the confessional statement is made to the police officer who are vested with the powers under section 53 of this NDPS Act, so it cannot amount to the conviction of an accused. ठीक है, और ये किस तरीके से हुआ है, सेक्शन 25 ने बार कर दिया है ऑफ द एविडेंस एक्ट। क्लियर? तो अब जो है कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट केस की तरफ, रिजवान खान वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। So in this case it was held that to prove the case under NDPS Act, it is not required to prove the ownership of the vehicle. बस इतना ही बता दें, इतना ही प्रूव कर दें कि जो कॉन्ट्राबैंड आर्टिकल्स है that was found from that vehicle. So merely because of the ownership of the vehicle is not established and proved vehicle is not recovered subsequently, trial cannot be vitiated on this point. It is enough to prove and establish कि contraband articles हैं that were found from the accused from the vehicle purchased by the accused. So student, that's it for this. So tomorrow I will come with the part 2 of this video where I will cover the rest of the cases. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर आपको इसका PDF चाहिए देन यू कैन मेल मी ऑन shivusingh25@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, सो मेल करिएगा, वहाँ से मैं आपको जो प्रोवाइड कर दूँगी। रेस्ट ये है कि आज की वीडियो में तूफान सिंह वाला केस और जो पहला केस था जो कि टेस्ट की बात करता है, व्हाट आर द थिंग्स दैट इज़ बीन लुक्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट वाइल ग्रांटिंग द बेल टू द पर्सन अक्यूज्ड अंडर दिस NDPS एक्ट। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों ही केसेस ध्यान से देख लीजिएगा और प्लीज़ शेयर करिएगा इस वीडियो को, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। देखिए जुडिशरी के एग्ज़ाम में आपका स्टेटमेंट के टाइप से देख सकते हैं, ठीक है, अगर केस नहीं दिया तो स्टेटमेंट आ जाएगा, अदरवाइज़ केस आ जाएगा आपका। तूफान सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। मैंने इतनी बार बता दिया तूफान सिंह, तो अब तो शायद आपको याद भी हो गया होगा। चलिए फिर इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, कल मैं इसका पार्ट 2 लेकर आऊँगी, प्लीज़ ध्यान से उसको ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जैसा कि मैंने कहा PDF चाहिए अगर आप। सो टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। बिफोर दैट आई वुड रिक्वेस्ट ऑल माई व्यूअर्स टू प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। डेंगू काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है, अपना ध्यान रखिए, और कल मैं आऊँगी अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो भी नए आए हैं, जिन्होंने आज देखा मेरा वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा यहाँ पे। सो